اس بلائے عظیم میں بڑے بڑے صوفیہ، مشہور خطبہ، ائمہ، قراء، عوام و خواص سب اس میں گرفتار بلا ہیں. یہ وبائے عام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نفس امارہ کی وہ 5 صفات جو ام الگناہ ہے، یعنی تمام ام البرائی ہے، تمام برائیوں کی اماں ہے. یعنی انہی 5 مذموم صفات سے بہت ساری برائیاں پیدا ہوتی ہیں. پہلی صفت جو عبودیت تھی اس کے بارے میں ہم نے بیان کر دیا. اب جو دوسری صفت جو بہت ہی مذموم صفت ہے، بہت ہی مکروہ صفت، جس کا نام ہے نفاق. یعنی نفس امارہ کی دوسری جو سب سے بدترین صفت جو ہے وہ ہے نفاق. نفس امارہ کی دوسری یہ بہت بری صفت ہے جس کو ہم لوگ نفاق کہتے ہیں. کہتے ہیں نا منافق صفت آدمی ہے، یہ ہے نا، یعنی ظاہر کچھ اور باطن کچھ. یعنی اکثر حالت میں نفس ظاہر اس کے باطن کے موافق نہیں ہوتا. یعنی نفس امارہ، جس کے نفس امارہ کے اندر یہ جو دوسری صفت ہے نفاق، تو وہ اکثر حالات میں ظاہر اور باطن دونوں الگ الگ ہوتے ہیں. یعنی ظاہر میں تو ملے گا، ایسا لگے گا بھائی اس سے زیادہ ہمارا کوئی مخلص نہیں ہے نا، لیکن دل میں نفاق لیے رہے گا، ایک زہر، نفاق کا زہر اس کے اندر رہے گا. تو نفس امارہ کی جو دوسری سب سے بدترین صفت جو ہے اس کا نام ہے نفاق. یعنی یہ ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ، ظاہر میں میٹھا میٹھا اور حقیقت میں باطنی طور پر یہ مکمل ایک زہر ہے. نفاق کی بیماری جس کے اندر نفس امارہ نے نفاق کی صورت میں جس پہ غلبہ پایا ہوا ہے، وہ ہمیشہ کسی کے لیے اپنے دل کو صاف نہیں رکھے گا. یعنی ہر وقت ظاہر کچھ باطن کچھ. یعنی نفس ظاہر کے بالکل برعکس ہوتا ہے. یعنی ظاہر میں آدمی عاجزی کرے گا، ملے گا اچھے طریقے سے، ایسے لگے گا بھائی اس سے زیادہ قریبی ہمارا کوئی نہیں. مگر نفاق نام کا زہر اس کے اندر ایسا بھرا ہوگا کہ آپ کو موقع ملتے ہی ایسا ڈنک مارے گا کہ آپ پوری زندگی تڑپو گے. تو یہ بہت ہی بری صفت کا نام ہے نفاق. یعنی عوام و خواص خاص طور پر اپنے ملنے جلنے والوں سے ان کے سامنے ان کی تعریف کرتا. اس کی یہ جو صفت ہے جس کے اندر نفاق کی جو خاصیت ہے کہ آپ سامنے ملو گے تو بظاہر تو بہت اخلاق سے ملے گا، سامنے ملو گے تو آپ کی تعریف کرے گا، آپ جیسا کوئی نہیں، آپ تو بہت اچھے ہو، آپ تو ہمارے دل کے قریب ہو. اور اس کے پیچھے جیسے ہی بندہ دور ہوا فوراً اس کے برعکس کام میں لگ جائے گا. یعنی سامنے ملے تو تعریف اور پیچھے گئے تو آپ کی برائی، چونکہ اس کے اندر نفاق ہے نا، نفاق کا زہر ہے. جیسے آپ دور ہو جاؤ گے فوراً یہ نفاق کے نام یہ زہر، جیسے سانپ کے منہ میں زہر ہوتا ہے نا، سانپ کے منہ میں زہر کی تھیلی ہوتی ہے، ویسے ہی نفس امارہ کے اندر 5 زہر کی تھیلیاں ہیں، جس میں تھیلی نمبر 2 وہ ہے نفاق. جیسے ہی آپ کے سامنے ملے تو بہت میٹھا میٹھا، اور جیسے پیچھے کے فوراً آپ کی برائی اور غیبت میں لگ جائے گا. سامنے آپ کی تعریف اور پیچھے آپ کی برائی. جیسے آپ سے دور ہوا تو آپ کی توہین اور مذمت میں، وہ غیبت میں لگ جاتا ہے اور طرح طرح کے الزام تراشیاں یہ کروا لیتا ہے. اور جب سامنا ہوتا ہے تو فوراً جیسے گرگٹ اپنی رنگ بدلتی ہے، فوراً پھر اپنے اسی حال میں آ جائے گا، ہے نا. منافق کی مثال نفس امارہ، جس کی نفس امارہ کی جو دوسری صفت ہے، اس کو گو ہوتی نا، گو ایک جانور، گھورپٹ بھی جس کو کہتے ہیں، شافعی حضرات اس کو کھاتے ہیں. یعنی وہ خشکی میں بھی رہتا ہے اور پانی میں بھی رہتا ہے. یعنی گوہ کی جو مثال جو ہے نا وہ منافق سے دی جاتی ہے.
बात समझ में आई। गोह एक ऐसा जघोरपड़ करके नाम का जानवर होता ना, ये छिपकली से मुशाबे होता है। तो जब उसको कभी आप क्या नाम है, वो ऐसी जगह अपना घर बनाएगा, अपना बिल बनाएगा जो पानी खुश्की दोनों में रहेगा, कि अगर पानी का कोई शिकारी जानवर आएगा उसको पकड़ने के लिए तो खुश्की में आ जाएगा, खुश्की से मारोगे तो पानी में चला जाएगा। यानी पानी वाला ये गलत फहमी में रहे कि ये पानी का ही सिर्फ जानवर है तो गलत फहमी का शिकार है, और अगर खुश्की वाला समझता है कि सिर्फ खुश्की का जानवर है तो भी गलत फहमी का शिकार है, कि जब खुश्की से हमला करोगे तो पानी में, और पानी से हमला करोगे तो खुश्की में। ये है किधर का? दोनों का है और किसी का भी नहीं है। तो वैसे ही नफ्से अम्मारा कि हमारी जो दूसरी सिफत है वो है निफाक, जिसकी एक शक्ल है वो गोह जैसी, जहां गया वैसा हो गया। यानी अम्मारा की ये सिफत निफाक का ही कमाल है कि गीबत जैसी बड़ी आफत, हसद जैसी बड़ी बुराई इसी की वजह से बंदे के अंदर पैदा हो जाती है। यानी जो हसद की आग है, निफाक जो है ना, इसी वजह से बहुत सारी बुराइयां इसी से जुड़ी हुई मिलती हैं। और ये बीमारी की वजह से बंदा हमेशा दोस्तों में इसकी हसद, किसी की हसद है किसी के लिए दिल में, दूसरे के सामने क्या उसकी बुराई करके गीबत करा करा के, यानी इस निफाक के मर्ज में मुब्तला शख्स अगर आपके साथ पूरी जिंदगी भी गुजार दे, आप पूरी जिंदगी उसके साथ साथ रहो, एक लम्हा लगेगा उसके दिल में ये जहर निफाक फैलने के लिए। फौरन यानी आपकी पूरी जिंदगी आपने उसके साथ दोस्ती में गुजार दिया, मगर अगर उसकी नफ्स के अंदर ये निफाक नाम का जहरीला असर है, ये जहरीली बीमारी है, तो एक झटके के अंदर आपकी पूरी जिंदगी की मेहनत और दोस्ती बेकार हो जाएगी। फौरन आपकी बुराइयां और ग़ीबत करना वो शुरू कर देगा। यानी निफाक अम्मारा की वो रजील सिफत है जिसे इसे दुनिया वो आखिरत दोनों जगह में जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ता है। अब जाहिर सी बात है कि निफाक बंदा दिल में लिया हुआ है और कहीं मौका मिलेगा तो फौरन वो निफाकी जहर उसके मुंह से आना शुरू हो जाएगा। अब ये जो बात जहाँ के लिए बोला वहाँ जाके बात पहुँचेगी तो दुनिया में रुसवाई है ना, जिल्लत और रुसवाई दुनिया में भी मुकद्दर, और अल्लाह और रसूल के नज़दीक भी ये नापसंदीदा सिफत है। इसीलिए इस सिफत से अल्लाह की पनाह तलब करें और इस सिफत को ख़त्म करने की कोशिश करें। अब ये ख़त्म कैसी होगी इस पे भी इंशाअल्लाह ताला हम अर्ज़ करेंगे। या यूँ समझे हकीकतन निफाक एक ऐसी बीमारी है जो बहुत बुज़दिल टाइप का है। निफाक याफ्ता आदमी जो बहुत बुज़दिल होता है, आप समझे कि समझे, यानी निफाक के अंदर जो है ना जुर्रत और ताकत नहीं होती, बहादुरी उसके अंदर नहीं होती है। आप आ गए तो आप बहुत अच्छे हो, है ना, इसके अंदर जवा मर्दी नहीं होती है, एक तरह बुज़दिली की सिफत है ये। बस समझ आइए, यानी निफाक वाला आदमी, निफाक की जो सिफत है ये बुज़दिल टाइप, ये सिफत बुज़दिली में शुमार की जाती है। यानी ये ऐसी सिफत रजील है कि इस सिफत का गिरफ्तार पूरी जिंदगी आपके साथ भी रहे, आपका कभी सच्चा वफादार नहीं हो सकता। यानी निफाक से कई तरह के गलत फहमी पैदा होकर के ये शर्र व फसाद फैलाने का सबब बन जाता है। यानी निफाक याफ्ता शख्स बड़े दर्जे का इब्नुल वक्त होता है, यानी जो मुनाफिक जिसके अंदर ये बीमारी होती है नफ्स अम्मारा के अंदर, जिसके नफ्स अम्मारा के अंदर निफाक की बीमारी होती है, वो बहुत ही बड़ा मौका शनास, मौके का फायदा उठाने वाला, एक नंबर का इब्नुल वक्त कहते हैं ना, यानी वक्त का सबसे बड़ा बच्चा यही है, जहां गया वहीं का हो गया। आपके साथ है तो आपका है। ये सिफत आपको इलेक्शन के दौरान बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगी, है ना, जब चुनाव होता है जो आएगा, हाँ सब हम आपके ही साथ हैं, है ना, मगर वो आपके साथ सिर्फ आप उसका निफाक है वो नहीं है ना, यानी आपके साथ सिर्फ उसका निफाक है वो नहीं है, वो तो पता नहीं किसके साथ है, वो कब रास्ता अपना बदल देगा दो मुँहे सांप की तरह, कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो बहुत ही रजील सिफत ये निफाक जो है इंसान के अंदर होती है। यानी ये सिफत हमारा जानवर की तरह है, यानी इस पर लगाम लगाना बहुत मुश्किल है, यानी कब किस तरह मुंडी उठा के भाग जाए कोई कुछ नहीं कह सकते।
या यूं समझे कि निफाक की वजह से आदमी सच्चाई को अपनी आंखों से देखने के बाद भी कबूल नहीं करता। यानी ये वो सच्चाई पे पर्दा डालने के मामले में आंख वाला हो के भी आदमी अंधा बन जाता है। यानी देख रहा है कि इसके अंदर सच्चाई है, मगर निफाक उस सच्चाई को मानने नहीं देता, है ना। यानी अब आप इस बुराई का अंदाजा इसी से लगा लें कि यानी आदमी सच्चाई अपनी आंखों से देखने के बावजूद ही नहीं मानता। ये वो बहुत ही मनहूस और मरदूद टाइप की सिफत ये है। ये सच्चाई के बजाय हमेशा बुराई पे रखने वाली सिफत है ना। यानी हजार खूबियां आपके अंदर हो, मगर ये सिर्फ आपके ऐबों पे ही नजर रखता है। यानी अब यूं कह लीजिए कि निफाक वो गंदी मक्खी है जो इसको तरह तरह के हुस्नदार खुशबूदार फूल नहीं बल्कि गलीज और गलाजत वाली जगह ही इसको पसंद आती है। यानी आपकी खूबियों पे यह नजर नहीं रखेगी, हर वक्त आपकी बुराई पर ही नजर रखना होता है। इस बलाए अजीम में बड़े बड़े सूफिया, मशहूर खुतबा, आइम्मा, कुर्रा, अवाम खवास सब इसमें गिरफ्तार बला हैं। ये वबाए आम है ना, ये आम वबा है, यूं कह लीजिए शुगर के मर्ज की तरह फैली हुई बीमारी है। ये अक्सर नफ्स इसके अंदर गिरफ्तार है ना, अक्सर लोग। तो इसकी यानी जो मर्ज जितनी ज़्यादा आम हो जाए तो उसका इलाज भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यानी बहुत ही शदीद ये बीमारी है जिसका इलाज किस तरीके से करना बताते हैं। यानी इसमें हर अवाम व खवास, पढ़ा लिखा अनपढ़, सूफी, आम, हर कोई इसमें गिरफ्तार है नजर आता है। अब हर एक को ये समझना चाहिए कि वाकई यार सामने वाले के अंदर ये सच्चाई है, ये हकीकत है, तो मैं मान क्यों नहीं रहा हूं, है ना। आप पता कैसे लगाएं कि मेरे अंदर निफाक की बीमारी है? तो अंदाजा यूं करें जैसे कोई खूबी मेरे अंदर है ना, लेकिन वो खूबी होने के बावजूद भी आप हमको नहीं मान पा रहे हो, तो वो है निफाक की बीमारी। वो मर्ज निफाक है जो आपको मनवाने नहीं दे रहा है ना, आपको एक्सेप्ट नहीं करवा रहा है, आंखों से देख रहा है वो कि हकीकत यही है मगर मानने का नहीं। निफाक का इलाज सिर्फ ये है, अब इसका इलाज सुने। निफाक का इलाज ये है कि मुजाहिदे सिद्क इख्तियार करें। यानी सच्चाई का मुजाहिदा वो है क्या? यानी जो उसे हकीकी तौर पर माने, अगरचे यानी जो देखे, यानी सिद्क सच्चाई। निफाक का इलाज सिर्फ सच्चाई है। यानी किसी के अंदर जो चीज़ आपने देखा तो सच तो आपका है, मगर निफाक का जो मर्ज आपको मानने नहीं दे रहा है तो उसको मान लेना अपने नफ्स को, नहीं इसके अंदर ये भी सच्चाई है, तो क्यों इसे हसद कर रहा है, निफाक रख रहा है ना। तो निफाक का इलाज सिद्क है, सच्चाई है कि जो हो वो मान लो, है ना, हकीकत को मान लेना, ये सच्चाई। निफाक का इलाज ये है कि मुजाहिदे सिद्क इख्तियार किया करें, यानी जो है उसे हकीकी तौर पर माने, अगरचे आपको, आपके नफ्स को खूब ही बुरा क्यों ना लगे। मगर इस बला से अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये मेरी बात सुनने के फौरन बाद ही इसका इलाज शुरू कर दें, है ना, कि कोई सच्चाई देखें, अगरचे हमारे नापसंदीदा शख्स के अंदर ही क्यों ना हो, मगर मनवाओ अपने आप से। यही इसका मुजाहिदा है, यही इसकी रियाजत है। बात समझ में आई? ये आज से ही शुरू कर दें, जब से शुरू कर दें कि जो सच्चाई देखें वो फौरन उसको मान ले, तो निफाक आपके अंदर जन्म नहीं लेगा, निफाक की बीमारी नहीं पैदा होगी। नफ्स चाहे जितनी ही दुश्वारी करे, नहीं ऐसा है वैसा, हमको ये बुरा बोला, कुछ भी नहीं। अगर अपने नफ्स की इस बीमारी का इलाज करना चाहते हैं तो सच्चाई को मानो, सिद्क को इख्तियार करो। यानी सिद्क का इख्तियार करना ही निफाक का तर्क करना है। सिद्क इख्तियार करो तो निफाक खुद ब खुद चला जाएगा। यानी सिद्क का इख्तियार करना और निफाक का तर्क करना ही ये इलाज इसका है। यानी सच्चाई को मानो और निफाक को भगाओ। हकीकतन सच्चाई जो भी हो, चाहे जितनी कड़वी हो, उसे हमें मानना चाहिए, हर हाल में मान लेना चाहिए। तभी जाकर के निफाक जैसी मकरूह सिफत से अपने आप को आप पाक कर पाएंगे। यानी हर एक के लिए अपने जाहिर के साथ साथ अपने बातिन को पाक कर लें। ऐसा ना हो
کہ ظاہر میں تو میرا یار ہے، ظاہر میں یار یار کریں اور پیچھے اس کے خلاف سازش کر کے اس کو مار مار کریں، یہ نفاق کی صفت ہے۔ یعنی جیسا سامنے پیش آتے ہیں ویسے ہی پیچھے اپنے من کو نفاق سے پاک رکھو، یعنی صدق کو اختیار کر اور نفاق کو ترک کر، صدق اختیار کرو اور نفاق کو ترک کرو، یہی نفس کی اس صفت کا علاج ہے، یعنی صدق کا اختیار کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمارے نفس امارہ سے اس صفت کو اپنے حبیب کے طفیل دفع فرمائے، آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں۔